Hello students, today I will teach you the modern aggregation system. तुझे ये मालूम है कि फार्मिंग क्या है, फार्मिंग के क्या प्रोसेस है। सबसे पहला पार्ट क्या था? What the farmer do? They prepare the land by plowing or by tilling. The next steps what they do? They go for manuring. For the next step, we go for seed plantation and seeding, sowing of seed. And then comes aggregation. Aggregation is an essential part of the plant. Without aggregation, plant do not develop it. हमने इस बारे में चर्चा की. Different types of aggregation system. Today we will talk regarding the modern aggregation system. Modern method of aggregation. Modern method of irrigation. Modern method of irrigation. What are the modern method? Olden method आपको पता था. What are the olden method we have discussed so far? हमने पहले भी olden method discuss किया है. कौन कौन सा था olden method discuss किया? पहला ढोकली from well by using the kettle. राहत पुल्ली सिस्टम. इसमें ऐसा होता था कि कुएं में बकेट डाल देते थे और पुल्ली डालते थे. We used to pull that and then like the people are taking out the water from the well. आपने देखा नहीं होगा, नए जनरेशन में पानी कुएं से निकाला जाता था, चापाकल से नहीं. चापाकल तो मॉडर्न मैकेनिकल आ गया. सो पुल्ली से होता था, राहत से होता है, एनिमल के द्वारा होता था. These were the olden systems. Now today we will teach you that a sprinkler. There are the two advanced method, that is a modern method. There are two modern methods. इसमें नंबर 1 a sprinkler system. A sprinkler system and दूसरा ड्रिप इरिगेशन ड्रिप सिस्टम. ये इरिगेशन के दो अलग अलग सिस्टम हैं. एक स्प्रिंकलर सिस्टम है, दूसरा ड्रिप सिस्टम. Now what is a sprinkler system? Number 1. एक्चुअली इसमें होता क्या है स्प्रिंकलर सिस्टम में? वाटर जरा समझने की कोशिश करो. वाटर फ्रॉम ए सोर्स, फ्रॉम द सोर्स, फिगर from the ये source है. और water pump you can say. वाटर पंप से पाइप जाती है. ये मल्टीपल डायरेक्शन से जा सकती है. Here you can say
Like this, actually what happens, the different types of sprinklers are there. इसमें एक बल्ब लगा होता है, ये पाइप होती है, पाइप और ये होता है यहाँ पर स्प्रिंकलर। ये मूव करता रहता है वाटर प्रेशर में और वाटर चारों तरफ स्प्रेड करता रहता है अपने वॉल्व के द्वारा, ठीक है। ये स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम क्या कहता है, द स्प्रिंकलर वाटर इज स्प्रेड ऑन द प्लांट यूजिंग द स्प्रिंकलर, ठीक है। इन द स्प्रिंकलर सिस्टम the perpendicular pipe having rotating nozzles top are called sprinklers. The sprinklers are joined to main pipe at a regular interval. Pumps are fitted in this system for lifting the water. When the pump is switched on, the water is lifted and allowed to flow through the pipe, and under the pressure, the rotating nozzle gets sprinkled on the crop. So, actually what happens, इसके बारे में थोड़ा लिख लो। स्प्रिंकलर सिस्टम in this system, simply you cannot say in exam, you need to write something on the paper. I know that you can understand, you understand, you have seen the sprinkler, so you have to write. In this system, pipes are connected from the high pressure pump, high pressure pumps, water pump. Pipes are spread in the field in the farm at 10 feet, 15 feet to 10 to 15 feet distances. As per the requirement. On the bend of the pipe, on the bend or nearly every 20 feet. Vertical pipes are fitted having sprinklers. When water is released, to the pipe, water is released to the pipe.
the nozzle of the sprinkler and the mouth of the sprinkler. The sprinkler starts rotating due to water pressure. And water is spreading. Water spreads in the food. So children, we have discussed the sprinkler system. Now, and this is the figure, you can write. Another is the drip system. What is happening in the drip system? It is more simple, in which pump all ends are closed and they have multiple holes. They have multiple holes and water is released from that. Water is released from these multiple holes. So actually what happens in drip system, mainly वहाँ यूज करते हैं जहाँ पर डेजर्ट होती है, उस केस में हमें वाटर की सेविंग होती है. देखो बच्चे जरा ड्रिप सिस्टम. In this system, holes in the pipes allows water to fall drop by drop on the plants at the position of the root. ऐसा सेट किया जाता है ड्रिप सिस्टम के पाइप्स को कि प्लांट के रूट पर पानी आए. अगर पौधा आपने लगा रखा है पूरी तरह, अगर प्लांट्स ऐसे है, then you allow the drip system here, 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 here. मतलब ये वाटर यहीं पर रिलीज कर. You will get the water from here, you will get the water from here, you will get the water from here. मतलब यहाँ जितने प्लांट हैं उतने ही वाटर का आउटलेट बना होगा और वो सारे क्रॉप के पास जाएंगे, इसलिए वाटर वेस्टेज नहीं होगा. In drip system, the whole of the pipes are allows to fall the water only on the plant at the root, and no water wastage are there. Well, no water at all. The system generally it is adopted in the desert side where water loss is minimized due to evaporation. अगर पूरे फील्ड में तुम वाटर को स्प्रे करते हो तो वाटर का इवापोरेशन होगा and water will be lost more. It is boom to the region where the less water is available. This system is more important and boom to the places where less water is available. अभी हम तुम्हें एक्टिविटी दिखाएंगे. सबसे पहले एक स्प्रिंकलर सिस्टम तुम देखो कैसे फंक्शन करता है. जस्ट तुम कैमरा पर देखो और तुम्हारा स्प्रिंकलर सिस्टम कैसे वर्क करता है इसको समझने की कोशिश करो. एक्चुअली व्हाट हैपेंस
In this, children, pay attention. It is the water supply lines, and here you have got the pillars, the sprinklers. इसके ऊपर में नोजल होता है. जब वाटर इस पाइपलाइन से शुरू हम छोड़ते हैं तो एट हाई प्रेशर क्या होता है? एट हाई प्रेशर यहाँ से वाटर रिलीज होता है, ये सर्विस, और ये प्रेशर के कारण ये घूमने लगता है. ऐसे भी तुमने कभी कभी देखा होगा कि पानी के प्रेशर के कारण नलके में आवाज़ आने लगती है अगर लूज तुमने किया, या नलके का वाल्व लूज है. वैसे ही यहाँ पर ये वाल्व है, नोजल से होते हैं. जब वाटर प्रेशर आएगा तो ये मूव करने लगता है. देखो कैसे काम करता है. नाउ यू सी, तुम देख रहे हो, देखने की कोशिश करो. यहाँ से क्या होता है कि हाई प्रेशर पाइप आया है, अब पाइप ये स्प्रिंकलर सिस्टम से जोड़ दिया गया है सभी को. बाद में हम इसको उठा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं यहाँ से, और ये पूरे फॉर्म में वाटर स्प्रे करता है. ऐसा लगता है जैसे रेनी सीजन है, बारिश होती है. दिस इज योर स्प्रिंकलर सिस्टम. हाउ ए स्प्रिंकलर सिस्टम इज वर्किंग, ये आपको ध्यान देने की चीज़ है. ठीक है, ओके. नाउ वी विल टीच यू, we will show you what was the system of drip system. अब देखिए ये ड्रिप सिस्टम कैसे काम करता है, ये भी हम आपको बता देते हैं. देखिए ये ड्रिप सिस्टम है, और यहाँ मैंने बोला था यहाँ पाइप्स में होल कर दिए जाते हैं. Right. I'm going to drill holes in the half-inch PVC pipe wherever I need water for my plants. So I have the half-inch PVC pipe. I have a T-joint with thread on to drill holes in the half-inch PVC pipe wherever I need water for my plants. So I have the half-inch PVC pipe. I have a T-joint with thread on one end and flush on the other two ends. Because you want to be able to control the water pressure. Otherwise, the water will spray out of the holes all over the place. Well, if I had no valve, this is what will happen. Now look at how the water is getting spread. तुम्हारे पाइप्स में होल बने हुए हैं, और ये वाटर जब रिलीज करते हो इस पाइप के थ्रू पूरे खेत में वाटर स्प्रेड होता है. इसे हम बोलते हैं ड्रिप एग्रीगेशन सिस्टम. अब जहाँ जहाँ पाइप है तुम्हारा, जितने होल हैं, यहाँ पर पौधे होंगे, यहाँ पे पौधे होंगे, यहाँ पे होंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना होता है. ठीक है, ओके चिल्ड्रन, वॉच नेक्स्ट. हाँ, तो मैंने तुम्हें ये बताया. अब इसके बाद आ जाओ थोड़ा क्वेश्चन के लिए. हम लोगों ने जैसा आपको बताया है ड्रिप एग्रीगेशन सिस्टम के बारे में. अब नाउ राइट द क्वेश्चन. ठीक है, हाँ बच्चों, पीछे का टॉपिक हमारा छूटा हुआ था और ये क्वेश्चन आंसर नहीं किए थे. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. टिक द फॉलोइंग. नंबर 1 क्वेश्चन है, ल्यूमिनस प्लांट्स हेल्प्स इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. यू नो द ल्यूमिनस प्लांट्स गिव्स द बाय रोजम बैक्टीरिया. ये क्या देता है? नाइट्रोजन देता है ल्यूमिनस प्लांट. अब अगला पार्ट ये है कि तुम्हारा बिफोर सोइंग सीड शुड बी ट्रीटेड विथ, किससे? इंसेक्टिसाइड से, पेस्टिसाइड से, फंगिसाइड से एंड फर्टिलाइजर से. तो हम लोग फंगिसाइड से उसको ट्रीट कर देते हैं. ठीक है, फंगिसाइड से ट्रीट कर देते हैं. अब आइए तीसरा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन. अब ट्रेडिशनल मेथड कौन नहीं है, ये आपको दिखना है. मोट ट्रेडिशनल है, धेकली ट्रेडिशनल है, राहत ट्रेडिशनल है, पुल्ली ट्रेडिशनल है, बाय हैंड ट्रेडिशनल है, और ड्रिप एग्रीगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम मॉडर्न है. आपका आंसर होगा ड्रिप. ये पुराना मेथड
नहीं है। ड्रिप सिस्टम एंड और स्प्रिंकलर सिस्टम मॉडर्न मेथड है, नॉट ओल्ड मेथड। चौथा क्वेश्चन, द सॉइल व्हिच नीड्स लीस्ट फ्रीक्वेंट एग्रीगेशन इज डैश। कौन सा सॉइल होता है? सैंडी होगा, क्लेज होगा। ये सॉइल जो है आपका लेस वाटर को रिटेन करने की कैपेसिटी है, ये वाटर को लंबे समय तक रिटेन करता है, इसलिए उसे हमें नीड लेस फ्रीक्वेंट एग्रीगेशन, हमें कम एग्रीगेशन होता है। अच्छा, पहले भी तुम्हें मालूम है कि दो तरह से एग्रीगेशन वाटर डिपेंड करता है, एग्रीगेशन कितना किन की चीज़ों, नेचर ऑफ सॉइल पर डिपेंड करता है और वेदर कंडीशन पर डिपेंड करता है। रेनी सीजन में हमें वाटर कम लगता है और समर में हमें वाटर सिंचाई में एग्रीगेशन में ज़्यादा लगता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स रिक्वायर्स स्टैंडिंग वाटर, स्टैग्नेंट वाटर, स्टैंडिंग वाटर? किस क्रॉप में पानी लगाया जाता है? आपको मालूम है व्हीट में पानी लगाओगे खराब हो जाएगा, कॉटन में पानी नहीं लगा सकते, मकई के खेत में पानी नहीं लगाना है। आप राइस पानी में डुबोया जाता है उस खेत को, अब पानी में राइस, स्टैग्नेंट वाटर में राइस होता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा राइस व्हिच प्लांट्स। सो चिल्ड्रन, वी हैव कवर्ड इट। नाउ वी विल टीच यू इन कमिंग क्लास द न्यू टॉपिक इज हार्वेस्ट। दिस इज अ क्रॉप प्रोटेक्शन। एग्रीगेशन के बाद हमारा क्रॉप प्रोटेक्शन अगला टॉपिक है। बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। थैंक यू।